ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ نئے چینی سال کا آغاز ہر سال مختلف طریقوں کو ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے یہ چاند اور سورج کی گردشوں سے مل کر بنتا ہے۔ عمومی طور پر یہ جنوری یا فروری کی تاریخوں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ نئے سال کو پری فیسٹیول یا بہار کا آغاز بھی کہا جاتا ہے۔ چائنیز نیو ایئر کا آغاز کب اور کیسے ہوا مختلف روایات موجود ہیں، لیکن سب اس بات پر متفق ہیں لفظ نیان جس کے معنی جدید چینی زبان میں سال یا برس کے ہیں، دراصل ایک خوفناک درندے کا نام تھا جس نے سال کے پہلی رات لوگوں کا شکار کرنا شروع کر دیا تھا۔ روایت کے مطابق نیان بلا کا منہ بہت بڑا تھا جس سے کئی لوگوں کو وہ نگل جاتی تھی۔ لوگ اس سے بہت زیادہ خوف زدہ تھے۔ قوم کا ایک بوڑھا شخص سامنے آیا کہ وہ اس بلا کو قابو کر لے گا۔ وہ بوڑھا شخص نیان کے سامنے آیا اور نیان سے کہا، تم معصوم لوگوں کا شکار کر رہے ہو، حالانکہ بہت سے درندے دنیا میں موجود ہیں جو لوگوں کے جانوروں کا شکار کرتے ہیں، تم ان سے نپٹو۔ تو نیان نے اس کی بات مان لی اور وہاں سے چلا گیا۔ نیان کہیں دور چلا گیا اور لوگوں نے پرامن زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ وہ بوڑھا شخص جاتے ہوئے لوگوں سے بڑے پتے کی بات کر گیا کہ ہر سال اپنے دروازوں پر سرخ رنگ کی جھنڈیوں سے سجاوٹ کرنا تاکہ یہ دوبارہ آنے کی ہمت نہ کر سکے، کیونکہ یہ بلائیں سرخ رنگ سے بہت ڈرتی ہیں۔ تب سے نیان کو فتح کرنے کا جشن منانے کا یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے، اور سرخ رنگ کے پٹاخے اسی لیے چلائے جاتے ہیں تاکہ واپس نہ آ سکے۔ اس لیے چائنا ہانگ کانگ میں ہر طرف سرخ رنگ کی سجاوٹ نظر آتی ہے۔ چائنا میں ان دنوں نئے سال کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ چائنا ہانگ کانگ میں نئے سال کی مبارکباد کو کنگا فٹ جوائے کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے آپ کے لیے خوشحالی دولت مندی کی تمنا۔ شادی شدہ افراد بچوں کو لائسی دیتے ہیں جیسے ہم اور آپ عید پر بچوں کو عیدی دیتے ہیں۔ یہ لائسی سرخ رنگ کی پیکٹوں میں دی جاتی ہے اور اس عقیدے کے تحت دی جاتی ہے کہ خوش قسمتی نئی نسل کو منتقل کی جا رہی ہے۔ لائسی مالکان اپنے ملازمین اور ساتھیوں کو بھی دیتے ہیں۔ جس طرح پاکستان میں ہم زبردستی پیار سے دوست احباب کی جیب میں کوئی چیز ڈال دیا کرتے ہیں، اس کی جھلک چین میں بھی نظر آتی ہے۔ جشن بہارا کی تعطیلات کو چینی زبان میں چھن یون کہتے ہیں۔ جشن بہارا کے موقع پر جب لوگ اپنے آبائی علاقوں کا رخ کرتے ہیں تو اسے دنیا کی سب سے بڑی عارضی نقل مکانی قرار دیا جاتا ہے۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے چین میں ان 40 دنوں کے دوران تقریباً 3 ارب سے زائد سفر متوقع ہوتے ہیں۔ چین میں ایک بچے کی پالیسی لاگو ہے۔ شادی شدہ جوڑے جشن بہارا کہاں مناتا ہے؟ دونوں میاں بیوی کے درمیان باہمی رضامندی سے یہ طے کیا جاتا ہے کہ ایک سال لڑکی سسرال والوں کے ساتھ تہوار کی خوشیاں منائے گی، جبکہ اگلے برس دونوں میاں بیوی لڑکی کے والدین کے گھر جائیں گے اور ان لوگوں کے ساتھ جشن بہار منائیں گے۔ اور نئے سال کے موقع پر کیا کام نہیں کیے جاتے؟ بال نہ دھوئے جائیں، جھاڑو نہ لگائی جائے، مبادا کے دولت کو جھاڑ کر باہر نہ پھینک دیا جائے، کسی قسم کے برتن پیالے پلیٹیں نہ توڑیں کہ یہ بدقسمتی کی علامت ہے۔ چینی زبان میں 4 کا لفظ نہ کہیں کیونکہ یہ چینی زبان میں مریں کا ہم لفظ ہے۔ نہ ہی اس دن قرض لیں اور نہ ہی دیں۔ چینی علم نجوم 12 مختلف جانوروں کے نشانات پر مبنی ہے۔ روایت ہے مہاتما گوتم بدھ جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے تمام جانوروں کو طلب کیا تو صرف 12 جانور انہیں الوداع کہنے آئے، اور مہاتما گوتم بدھ نے انعام کے طور پر سالوں کے نام ان کے نام پر رکھ دیے جس ترتیب سے وہ حاضر ہوئے تھے۔ پہلے چوہا آیا، پھر بیل، ٹائیگر، خرگوش، ڈریگن، سانپ، گھوڑا، بندر، مرغا، کتا اور آخر میں سور۔ چنانچہ 12 سالوں کے نام اسی ترتیب سے آتے ہیں، اور چینی علم نجوم کے مطابق جس جانور کے سال میں وہ پیدا ہوتا ہے وہ اس پر گہرا اثر رکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں کہا جاتا ہے اس میں بلی کیوں نہیں شامل ہے تو کہا جاتا ہے بلی اور چوہے کی دوستی تھی، اس لیے بلی نے چوہے کی ڈیوٹی لگائی مجھے بھی اٹھا دینا، لیکن چوہا چلاکی سے پہلے پہنچ گیا جس کی وجہ سے بلی چوہے کی دشمن بن گئی۔ چین میں نئے سال کے موقع پر مختلف کھانے بنائے جاتے ہیں جن کے تاریخی نام ہوتے ہیں جو طویل عمری، خوش قسمتی، دولت
दौलत मंदी जैसे मिलते जुलते नामों से होते हैं। और चाइनीज़ एक दूसरे के घर मुबारकबाद देने जाते हैं तो तोहफे साथ लेकर जाते हैं और संतरे या नारंगी भी लेकर जाते हैं, क्योंकि इनके नाम चीनी ज़बान में सोने और दौलत से मिलते जुलते हैं। और नए साल के मौका पर हफ्ता भर दस्तरखान पर मीठी और चटपटी अशिया मेहमानदारी के तौर पर सजी रहती हैं। चीन की ख़ास सौगात डम्पलिंग को बड़ी अहमियत हासिल है। डम्पलिंग को आप पाकिस्तान का रोड पराठा कह सकते हैं। और कई घरों में 5 गोश्त या 5 सब्जियों की डिशेस बनाई जाती हैं, जिन्हें 5 बरकतों से ताबीर किया जाता है, जिनमें दराजी उम्र, दौलत, अमन, दानिश और खैर शामिल है। और चीन के मुख्तलिफ हिस्सों में लालटेन फेस्टिवल और दिगर बहुत सी सकाफती तकरीबात देखने में आती हैं। चीनी ज़ुबान में मछली का लफ्ज़ ज़्यादा बचत से मिलता जुलता है और न्यू ईयर पर सालम मछली भी सर्व की जाती है, जो साल के आखिर में बचत और नए साल पर ज़्यादा पैसे कमाने का मज़हर समझी जाती है। और इस ज़ियाफ़त में आखिरी डिश नूडल्स की होती है, जो लंबी उम्र की अलामत समझी जाती है। चीन और हांगकांग में सबसे बड़ी मुश्किल खाने की होती है, क्योंकि हमें हलाल फूड खाना होता है। खाने में भी नाश्ता सबसे अहम कि दिन का आगाज़ ही इसी से होता है। चीन में खाने के मेन्यू में 40 से 100 तक आइटम्स होती हैं, मगर पेशतर सिर्फ उन्हीं के लिए हैं। हमारे लिए बहुत महदूद चॉइस बचती है। दुनिया में सबसे बड़ा तलीमी निज़ाम चीन में है। दुनिया में चीन की आबादी सबसे ज़्यादा है, इसलिए तालिब इल्मों की तादाद भी सबसे ज़्यादा है। तलीम हासिल करने वालों की तादाद 20 करोड़ से ज़्यादा है। चीन में प्राइमरी से मिडिल तक यानी 9 साल तक मुफ्त तलीम दी जाती है। दुनिया भर में अपने मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से सबसे ज़्यादा पुरअमीर चीनी शहरी हैं और ये शरह 87% है। दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप फास्ट टेलीस्कोप है। इसका रकबा 30 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। ये टेलीस्कोप चीन के जनूब मगरबी सूबे गोइचो की एक काउंटी फंगथांग में वाक़ है। ये पहाड़ के दामन में नस्ब है। दूर से देखने पर एक बड़े प्याले की मानद दिखाई देती है। हांगकांग को दुनिया के नक्शे में मुनफरिद और मखसूस मकाम हासिल है। जोग्राफियाई तौर पर चीन का एक हिस्सा होने के बावजूद ये 1841 से जून 1997 तक बरतानिया की नौ आबादी रहा। 1994 में बरतानिया और चीन के दरमियान तय पाने वाले एक मुआहदे के तहत 1 जुलाई 1997 को हांगकांग की हकमियत बरतानिया से चीन को मुंतकिल हो गई। 1 कंट्री 2 सिस्टम के तहत हांगकांग अपने रोज़मर्रा अमूर अंजाम देने के लिए अवामी जमहूरिया चीन से मुख्तलिफ सिस्टम रखने का हकदार पाया, जबकि दिफा और खारजा के अमूर मरकज़ी हुकूमत के मातहत रहे। हांगकांग के सियासी निज़ाम में रफ्ता रफ्ता तब्दीलियाँ आ रही हैं, मगर बाज़ अमूर अभी तक जूं के तू हैं। मसलन अंग्रेज़ी ज़बान अभी तक सरकारी ज़बान के तौर पर इस्तेमाल होती है और स्कूलों में भी अमूमी तौर पर पढ़ाई जाती है। मेन लाइन चाइना के साथ मिलने वाली सरहद अब बाउंड्री कहलाती है और इमिग्रेशन और कस्टम के 2 अलग-अलग महकमे इसकी देखभाल करते हैं। और अब भी हांगकांग के शहरियों को मेन लैंड चाइना जाने के लिए मेन लैंड ट्रैवल परमिट दरकार है और मेनलैंड चाइना के शहरियों को हांगकांग में मुस्तकिल रहाइश का हक नहीं और उन्हें अब भी हांगकांग जाने के लिए परमिट टू विज़िट दरकार होता है। हांगकांग का कानून का निज़ाम अब भी चीन के कानून से मुख्तलिफ है। यहाँ अब भी पुराने कवानीन नाफिज हैं। यहाँ की करेंसी अब भी हांगकांग डॉलर कहलाती है और ये हांगकांग मॉनेटरी की ज़िम्मेदारी है और बैंक ऑफ चाइना ही इसका इजरा कर रहा है। हांगकांग के कस्टम कवानीन अब भी चाइना से मुख्तलिफ हैं। हांगकांग में अब भी मुख्तलिफ इलाकाई तंजीमों का रुकन है। हांगकांग की रोड्स के कवानीन अब भी बरतानवी स्टैंडर्ड के मुताबिक रखे जाते हैं। हांगकांग में अब भी ट्रैफिक चीन के बरखिलाफ बाईं जानब चलती है। गाड़ियों की नंबर प्लेट अब भी बरतानिया के अंदाज की हैं, यानी सामने की सफ़ेद और पुश्त की पीली। हांगकांग में अब भी गाड़ियां क्रॉस बॉर्डर नंबर प्लेट के बगैर दाखिल नहीं हो सकती। हांगकांग के पासपोर्ट होल्डर्स को 150 से ज़ायद ममालिक के वीज़े के बगैर दाखिला मुमकिन है। चीन के 1 पार्टी सिस्टम के बरखिलाफ हांगकांग में कई पार्टी सिस्टम अब भी जारी है। हांगकांग में इज़हार राय की आज़ादी चीन की निस्बत कहीं ज़्यादा है। यहाँ बिजली के प्लग यूके स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं। हांगकांग अपना डायलिंग कोड +852 रखता है। हांगकांग की अपनी पोस्टल सर्विस है जो चाइना के मतहत नहीं है। पुलिस और सिक्योरिटी के ड्रिल मार्चिंग के अहकामात अब भी अंग्रेज़ी में दिए जाते हैं। हांगकांग में बरतानवी शाही ख़ानदान के मुजस्मे अब भी नस्ब हैं। मलका बरतानिया का मुजस्मा विक्टोरिया पार्क में मौजूद है। बरतानवी दौर के स्कूलों, हस्पतालों, रोड्स के नाम भी अब भी वही हैं। एक चीनी बुढ़िया के घर पानी के 2 मटके थे जिसे वो कंधे पर रखती और पानी भरकर लाती। इन 2 मटकों में से एक तो ठीक था मगर दूसरा थोड़ा सा टूटा हुआ था।
जिस की वजह से टूटे हुए मटके का पानी घर पहुंचते पहुंचते आधा रास्ते में ही बह जाता था। सही मटका अपनी कारकर्दगी से मुतमिन था, लेकिन टूटा मटका दिल में खलश महसूस करता था, जिसकी वजह से वो अपनी ज़ात से ही नफ़रत करने लगा था कि वो क्यों ऐसी कारकर्दगी पेश नहीं कर सकता जैसी कि उससे तवक्को की जाती है। बिलाखिर 2 साल के अरसे के बाद उसने बुढ़िया से कहा कि जो तुम पानी इतनी मुशक्क़त से भरकर लाती हो वो मेरी इस माजूरी की वजह से घर पहुंचते तक आधा बह जाता है। तो बुढ़िया सुनकर हंस दी और टूटे मटके से कहा, क्या तुमने इन सालों में ये नहीं देखा कि जिस साइड से मैंने तुम्हें उठाया होता है उस तरफ फूलों के पौधे ही पौधे लगे हुए हैं, और मुझे इसका पूरा एहसास है, इसीलिए मैंने नहर से अपने घर तक फूलों के बीज बो दिए थे, और तुम्हारे बह जाने वाले पानी से तमाम फूल सैराब होते हैं, और इन सालों में मैंने इन फूलों से गुलदस्ते बनाकर मैंने अपने घर को कई मर्तबा महकाया है। अगर तुम मेरे पास ना होते तो ये बहार मैं देख ही ना पाती जो तेरे दम से मुझे मिली है। ये कहावत बुनियादी तौर पर चाइनीज़ मजाज की अक्कासी करती है। दोस्तों, ये थी हांगकांग और चीन के बारे में ऐसी मालूमात जो आप में से अक्सर लोग नहीं जानते होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर क्या ख्याल है, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें और लाइक का बटन भी प्रेस कर दें। अगली वीडियो तक अपने इस दोस्त को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।